Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will talk about the calculation of arithmetic mean in case of discrete series. बेटा डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकालना उतना ही सिंपल है जितना इंडिविजुअल सीरीज में था, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी आ जाती है. इट लुक्स लाइक दिस. आपको वेरिएबल दे रखा है मार्क्स एंड आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. So 5 marks have been scored by 2 students, 10 marks have been scored by just single student and so on. तो जब हमें frequency given होती है तो we have to consider that as well. Obviously that is the reason frequency is also given. So marks is X, frequency is F. Now 5 marks have been scored by 2 students, that makes it 10. 10 marks have been scored by one single student, that makes it 10 only. 15 marks have been scored by 4 students, that makes it 60. 20 marks beta 3 students का है, that makes it again 60. So this is the multiplication of frequency and the variable. Variable मतलब जो vary करता है, marks यहाँ vary हो रहे हैं. So total of fx is coming out to be 140 if I'm not wrong. And then sigma of fx, the total marks scored by all these students have come out to be 140. And then number of students are how many? All of you? Beta, it's 3, it's 7 and then it is 10. So number of students are 10. So mean is coming out to be 14 marks. So this is how you calculate average or arithmetic mean using direct method in case of discrete series. Now let's talk about shortcut method. बेटा जब मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करना सिखाई थी, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि वेरिएबल में से जब आप मीन को एज्यूम करते हो तो ये जो थंब रूल हमने बनाया हुआ है कि हमें सेंटर में से ही मीन को एज्यूम करना होता है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. आपके अकॉर्डिंगली जो ऐसा नंबर आपको वेरिएबल में दिख रहा है जिससे सब्ट्रैक्शन इजी रहे, पिक दैट नंबर. सो यहाँ पर मुझे वेरिएबल में से 5 एक ऐसा नंबर लग रहा है जिससे सब्ट्रैक्ट करना बाकी नंबर्स को काफी कन्वीनियंट होने वाला है. तो मैंने वेरिएबल में से 5 को मीन एज्यूम कर लिया. फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली दे रखी है तो डी का कॉलम हमें अब कैलकुलेट करना है. डी का मतलब होता है डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम योर एज्यूम्ड मीन. तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल भी 5 है और एज्यूम्ड मीन भी 5 है, तो डी के कॉलम में पहला नंबर हो जाएगा 0 एंड इट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस 5 एंड दिस 5 ओनली. देन x is 10 and a is 5. Your answer will be 5. 10 minus 5, 5. 15 minus 5 will give you 10. 20 minus 5 will give you 15. Now this is how you calculate deviation. And then lastly जो frequency वाली values है बेटा आपको उनको deviation के साथ multiply करना है. 2 times 0 will make it 0. 1 times 5 will make it 5. And so on. So now you have figured out the value of f into d. बेटा ऊपर भी 45 हो गया सम और नीचे भी 45, it will make it 90. Number of students are 10. So assume आपने करा था 5, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं वैल्यूज को जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है. fd का टोटल निकल कर आया है बेटा 90 एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10. बेटा 0 के साथ आप जब 0 को कैंसिल करोगे यू विल बी लेफ्ट विद 9 अबव. And when you will add it to 5, you will get 14 marks as your average. Now that's how you attempt for shortcut method in case of discrete series. बेटा shortcut method का एक alternate नाम भी है assumed mean method. So keep that in mind as well. Last method is step deviation method. जहाँ पर बेटा frequency शायद लिखनी रह गई. I will write it over here. Now again the method that you have applied in shortcut, the steps are same for step deviation. You are gonna assume the mean again as 5. 5 less 5 will give you 0, then you will get 5, then you will get 10 and then you are going to get 15. This is the deviation column that has been calculated by subtracting all the numbers in the variable with the assumed mean. That's how we calculate this deviation column. The next column will be for d dash. If you remember the individual series mean calculation, I told you common factor is that number which will divide all the numbers in d. तो बेटा मुझे इसमें 5 एक कॉमन फैक्टर नजर आता हुआ दिख रहा है, तो आई एम गोना टेक कॉमन फैक्टर एज 5. ऑलराइट, सो 0 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 1. 10 को 5 से डिवाइड करके 2 आएगा. 15 को 5 से डिवाइड करके 3 आएगा. बेसिकली ऑल द नंबर्स हैव बीन डिवाइडेड विद 5. तो जो टोटल था 90 बेटा वो भी 5 के साथ डिवाइड होकर ही आएगा. जस्ट लुक ओवर हियर. 2 times 0 will give you 0. f into d dash करना है हमें. 1 times 1 will give you 1. 4 times 2 is 8. Then 3 times 3 will be 9. So beta this is 18. That is exactly the 5 time division of 90.
बेटा आप 90 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 18 ही निकल कर आएगा। तो बेसिकली जब हमने सारे नंबर को 5 से डिवाइड करा तो जो टोटल था वो ऑटोमेटिकली 5 के साथ डिवाइड हो गया। तो वापस से उसको 90 बनाने के लिए हम इस 18 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। That's all formula is about. Then sir, why is there a need for step deviation method? The reason is quite simple. 45 plus 40 plus 5 को करके 90 आता है, एंड बेटा 9 plus 8 plus 1 को करके 18 आता है, which is more simpler as compared to addition of these in bigger questions when you will get 3 digits or even मतलब prime numbers आ जाते हैं. So in that particular question step deviation थोड़ा सा convenient रहता है as compared to shortcut method. So in this particular question आपने assume करा था 5 आपका मीन निकल कर आएगा और FD डैश का टोटल आपने 18 एस्टिमेट कर लिया है, and number of students are coming out to be 10 multiplied with your common factor. बेटा न्यूमरेटर 90 हो गया, डिनोमिनेटर 10 है। अगेन मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं आंसर 14 मार्क्स आएगा। जिन बच्चों को इसमें भी डिफिकल्टी हो रही है, अब चाहो तो 5 को 10 से कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख लो, इस 2 को इस 18 से कैंसिल करके 9 लिख लो, 9 को 5 से ऐड करोगे तो 14, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर 90 लिख लो, इस वाले 0 को इसके साथ कैंसिल करोगे तो अगेन ये 9 plus 5 14 आपका आ जाएगा। भाई आइदर वे यू कैन कैलकुलेट 14 एज योर आंसर। एंड देयर आर 3 फॉर्मूले डिस्क्रीट के लिए, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। दे आर राइट ऑन योर स्क्रीन ओवर हियर। सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल को डिवाइड कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकल कर आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। शॉर्टकट मेथड के लिए बेटा आपको मीन एज्यूम करना पड़ता है और उसको जो भी कॉलम आप निकालोगे डी वाला, एज्यूम करने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, कॉलम एफ इंटू डी आ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे, फिर एज्यूम मीन में प्लस करके आपका मीन निकल कर आ जाएगा। देन लास्ट में बेटा आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इन दैट पर्टिकुलर मेथड ऑल यू हैव टू डू इज डी वाले कॉलम को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो कौन सा कॉलम आ जाएगा, डी डैश। फिर इस कॉलम को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी डैश का कॉलम हमारा बनकर बेटा आ चुका था। फिर इस वाले कॉलम का जो आपका टोटल होगा वो यहां न्यूमरेटर में आएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एज्यूम मीन में प्लस करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नाउ आई बिलीव डिस्क्रीट सीरीज में आपको तीनों ही मेथड्स क्लियर है। बेटा इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम विच एवर बुक यू आर रेफरिंग टू, एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट डिफिकल्टी आती है, आंसर टेली नहीं होता, यू कैन रीच मी ऑन कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।